یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں۔ ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک لنک ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جو تو کرم
شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واگا کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا واگا کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا واگا کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا دار چلتے گئے عطا کے وہ گے قطرہ تیرا دار گلتے گئے سخا کے وہ گے ذرہ تیرا دار چلتے عطا کے وہ گے قطرہ تیرا دار کھلتے سخا کے ہو گے ذرہ تیرا دار کھلتے سخا کے ہو گے ذرہ تیرا واگا کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا ہو
اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شگ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ فرید بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکات عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اشیل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اشیل بھائی آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو منی ڈرا بنانا سکھا رہا ہوں. جی منی ڈرا، چلیں کیسے بنائیں گے اس کا فارمول بتائیں آپ. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے 3 شیٹ چاہیے آپ کو، 2 ایک کلر کی اور ایک جیسی، اور ہمیں چاہیے سیزر یعنی کینچی، اور ہمیں چاہیے اس کے لیے گلو. تو سب سے پہلے آپ نے شیٹ کو اس طرح موڑنا ہے. دکھاتا ہوں. اس طرح آپ نے شیٹ کو موڑنا ہے. دوسری سائڈ بھی آپ نے اسی طرح موڑنا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں یوں موڑنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس کریز کے ساتھ آپ نے موڑنا ہے. اچھا پورا پیپر سے بنے گا؟ جی پورے پیپر سے بنے گا. اس کے میں آپ کو آگے اور بتاتا ہوں. آپ نے اس طرح سے آپ نے 1 2 3 4 5 6 کھانے بنانے ہیں آپ نے اس طریقے سے. پھر آپ نے اس کے بعد اس کو یوں فولڈ کرنا ہے دونوں سائڈ کو. پھر آپ نے اس کو ایک آپ نے ٹرائنگل شیپ میں موڑنا ہے. آپ نے اس سائڈ تک اس کو فولڈ کر لیں. دونوں سائڈ بھی آپ ایسے کریں گے. پھر آپ نے اس کے بعد دونوں سائڈ کو ماشاءاللہ ہے، کتنا سادہ پیج اور باریکی کتنی کر رہے ہیں آپ. فولڈ بہت زیادہ ہوگا. جی فولڈ پیج جو ہے وہ باریک ہے. جی ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں اب شیپ میں جو ہے آنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ اس طرح آپ کا فولڈ ہو جائے گا. پھر آپ نے اس کے بعد اس کے اندر کے ہم نے پیس لگانے، یعنی ہم نے اس کی شیپ ایک اور پیس بنیں گے، وہ بھی شیٹ کی مدد سے بنیں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اس طرح سے جو میں نے آپ کو 2 شیٹس بتائی تھی، آپ نے اس کو اسکوائر شیپ میں کاٹ لینا، یعنی ایک شیٹ میں سے 2 اسکوائر شیٹ نکلیں گی. پھر آپ نے ان کو اس طرح موڑنا ہے، یعنی فولڈ کر لیں. پہلے آپ نے رائٹ سائڈ سے ماشاءاللہ. پھر آپ نے یہ دیکھیں وہ 4 اسکوائر شیپ میں آ گئے. پھر آپ نے اس کے بعد اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے. سے جاگے سباب ہو تیرا نام. صبح کو جب پھر آپ نے اس کو اس کنارے تک یعنی کارنر تک فولڈ کرنا ہے. دن اپنا ہو پھر آپ نے تیرے ذکر سے ہی دوسری سائڈ کو اس طرح فولڈ کرنا ہے. جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. پھر آپ نے ان 2 اسکوائر کو کھولنا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد
इस तरह फोल्ड करना है। इसके बाद आपने से जागे सबाब हो तेरा नाम, सुबह को जब हम नींद से जागे शिबा इसको कितना टाइम लग जाता है बनने में? मैक्सिमम आपको 15 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे इसको। अच्छा, यानी तो जल्दी इसका बन जाएगा। फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा वो है। जी, तो प्यारे बच्चों, मदनी लेकिन नाज़रीन, आप साथ में ये भी देखते रहें और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लोग इस सेगमेंट में रोज़ाना अरबी अल्फाज सीखते हैं। वो अरबी अल्फाज उन चीज़ों के सीखते हैं जो कोई चीज़ें होती हैं, जैसे पंखे को क्या कहते हैं, डेस्क को क्या कहते हैं, बोर्ड को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं, ये हमने सीखा। आज हम दिलचस्प चीज़ें यूँ सीखेंगे कि हमारी जो उंगलियाँ हैं, इन उंगलियों के अरबी में अलग अलग नाम हैं, तो वो हम अरबी में याद करेंगे, फिर आप लोग सुनाएंगे भी। तो कौन कौन याद करेगा? जी, तो आज हम 3 उंगलियों के नाम याद करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे 2 उंगलियों के नाम याद करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले ये जो छोटी उंगली है, हमारी जो छोटी उंगली है, इसको अरबी में खिंसरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर इसके बराबर में जो आपको उंगली नज़र आ रही है, छोटी के जो 7 वाली उंगली है, इसको अरबी में बिन सरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिन सरुन। और बीच वाली उंगली, यानी ये दायरा बना हुआ है ना जिसके ऊपर, बीच वाली उंगली, ये वाली उंगली, इसको अरबी में वुस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वुस्ता। छोटी उंगली को अरबी में खिंसरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, अपनी कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जी, ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली को अरबी में खिंसरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंसरुन। इसके बराबर वाली जो उंगली है, इसको अरबी में बिन सरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिन सरुन। और इस उंगली को अरबी में वुस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वुस्ता। छोटी उंगली को अरबी में खिंसरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी के जो 7 वाली उंगली है, यानी आपको ये दायरा नजर आ रहा है, तो इसको अरबी में बिन सरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और बीच वाली उंगली को, यानी जिस पर गोल दायरा बना हुआ है, इसको अरबी में वुस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वुस्ता। छोटी उंगली को अरबी में क्या कहते हैं? सरुन। छोटी के जो 7 वाली उंगली, यानी जिस पर गोल दायरा बना हुआ है, इसको अरबी में क्या कहते हैं? बिन सरुन। और बीच वाली उंगली को अरबी में वुस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वुस्ता। छोटी उंगली को अरबी में खिंसरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खिंसरुन। छोटी की जो 7 वाली उंगली है, यानी जिस पर आपको गोल दायरा नजर आ रहा है, इसको अरबी में बिन सरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिन सरुन। और बीच वाली उंगली को वुस्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुस्ता। इस उंगली को अरबी में क्या बोलेंगे? खिंसरुन। और इस उंगली को जिस पर गोल दायरा बना हुआ है, बिन सरुन। और बीच वाली उंगली को वुस्ता। छोटी उंगली को अरबी में खिंसरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिन सरुन। खिंसरुन। छोटी की जो 7 वाली उंगली है, इसको अरबी में बिन सरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिन सरुन। बिन सरुन। और बीच वाली उंगली को अरबी में वुस्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? वुस्ता। जी। माशाल्लाह। इस उंगली को अरबी में क्या कहेंगे? खिंसरुन। और इस बीच वाली उंगली को, और इस उंगली को जिस पर गोल दायरा बना हुआ है, बिन सरुन। तो किस किस को याद हुआ? हाँ भाई, इतने सारे हैं। चलें चलें। जिस पर गोल दायरा बना हुआ है और जिस पर मैंने बोर्ड रखा है, यानी जो छोटी के 7 वाली उंगली है, इस उंगली को अरबी में क्या कहेंगे? नहीं, अब बताना नहीं है। बताना नहीं है, कोई एक बताएगा ना, हाथ उठा के। सारे मिलके बता दें। बिन सरुन। अब बताना नहीं है, कोई एक बताएगा। एक बताएगा जिसको मैं माइक। हाथ खड़ा करेंगे जिसको आता है। चले, अब कौन बताएगा कि छोटी उंगली को अरबी में क्या कहते हैं? चलिए आप। छोटी वाली उंगली तो खिंसरुन कहते हैं। जी, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलो, अब कौन बताएगा कि बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं? जी, बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं? जी, मुबीन भाई किससे पूछें? चलिए आप पूछते हैं इनसे, या भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रजा है। जी, माशाअल्लाह। अहमद रजा भाई। जी, वुस्ता। वुस्ता किसको कहते हैं? वुस्ता कह नहीं, वुस्ता कहते हैं। वुस्ता कह रहे हैं, किसको कहते हैं? वुस्ता कौन सी उंगली को कहते हैं? कौन सी? ये वाली? ये वाली या ये वाली?
जी ये वाली। जी माशाल्लाह, बीच वाली उंगली को वुस्ता कहते हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब भी दुरुस्त है। छोटी वाली उंगली को अरबी में खिंसरुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बराबर वाली जो उंगली है इसको अरबी में बिन सरुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बीच वाली उंगली को वुस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी वाली उंगली को अरबी में खिंसरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खिंसरुन। उसके जो साथ वाली उंगली है इस उंगली को अरबी में बिन सरुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खिंसरुन। और बीच वाली उंगली को अरबी में वुस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे आज कुछ उंगलियों के नाम जो यहाँ के अक्सर बच्चों को याद हो गए होंगे उम्मीद है, और कुछ ना मैं सुनाए भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है प्यारे सहाबा। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप ज़करिया भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी ज़करिया भाई, आज आप हमें कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताने जा रहे हैं? जी मैं आज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताऊँ। जी माशाअल्लाह। जी ज़करिया भाई। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने सेगमेंट प्यारे सहाबा में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे प्यारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में सुनते हैं, उनकी लाइफ की अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही प्यारे सहाबी जिनका प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही गहरा बहुत ही ख़ास रिलेशन है, और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, और उनका नाम है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आइए इनके बारे में मज़ीद मालूमात जानते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्बास है। क्या नाम है बच्चों? अब्बास। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं। कौन हैं? चचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एज में 2 साल का फ़र्क था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 साल पहले पैदा हुए थे। कितने साल पहले पैदा हुए थे? 2 साल पहले पैदा हुए थे। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिच पर्सन थे, यानी बहुत ही अमीर इंसान थे। दीन इस्लाम से पहले भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजियों को ज़मज़म शरीफ पिलाते थे। खाना काबा की तामीरात का एजाज़ आपको हासिल था, यानी आपने खाना काबा की तामीर में हिस्सा भी लिया था। फ़तह मक्का के दिन इन्हीं की कोशिश से हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया, और दूसरे कुरैश के सरदार भी इन्हीं के मशवरों से इस्लाम लाए। इनके फ़ज़ाइल में हदीसें भी हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत सी खुशखबरियाँ और दुआएं दी हैं। 32 हिजरी में 88 साल की उम्र पाकर मदीने मुनव्वरा में वफ़ात पाई, और जन्नतुल बकी में सपुर्दे खाक यानी दफन किए गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो सेगमेंट प्यारे सहाबा। ज़करिया भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए वाक़या सुने। बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहरा यानी डेजर्ट से जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक हिरनी ने आवाज़ दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा तो वो हिरनी बंधी हुई थी, और हिरनी को शिकार करने वाला शख्स सो रहा था। हिरनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, इस शख्स ने मुझे पकड़ लिया है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप मुझे कैद से छुड़वा दें ताकि अपने बच्चों को दूध पिलाने जा सकूं, मैं वापस आ जाऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम कह रही हो ऐसा करोगी भी? यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या तुम सच बोल रही हो, आ जाओगी? उसने कहा जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे खोल दिया। वो हिरनी वहाँ से चली गई और अपने बच्चों को
दूध पिलाकर वापस आ गई। इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरनी के पास देखा और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे आज़ाद कर दो। बाज़ रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिरनी के मालिक से कहा, क्या तुम मुझे ये हिरनी बेचोगे? तो इस हिरनी के मालिक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिरनी आपकी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिरनी को छोड़ दिया। वो हिरनी खुशी खुशी दौड़ती हुई जाने लगी और जाते जाते कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो जानवरों ने भी पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर भी रहम फरमाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की हर मखलूक यानी पूरे यूनिवर्स के लिए आप रहमत बनाकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब अदब व एहतराम करने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी नाज़रीन में प्यारे प्यारे बच्चों, अशील भाई की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। जी अशील भाई, आपने बना चुके हैं? जी मैं बना चुका हूँ, ये देखें। जी माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे अशील भाई बना चुके हैं और ये है आज का फाइनल प्रोडक्ट और आप ये देख भी सकते हैं। और ये देखें, ये देखें, ये यूँ बंद हो जाएगा, ठीक है? ये आप आराम से टेप पूरा नहीं हो कर- सकता बंद, ये यूँ हो सकता है। जी देखें इतना बंद भी हो जाएगा ये, और आप ये देख भी सकते हैं। जी माशाल्लाह, आपको अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। शील भाई, इसका एक मरतबा आप दोबारा फ़ौरन बता दें। देखिए हमारे शील भाई ने दूसरा भी बनाया है एक। जी माशाल्लाह, पेपर ड्रॉ। जी शील भाई, आपने कैसे बनाया है? तो सबसे पहले आपने शीट लेनी है। शीट को आपने इस तरह फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह आपने फोल्ड करना है कि इतनी साइड आपकी बचे। फिर आपने ये जो बची हुई साइड है आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। जी माशाल्लाह। फिर आपने इसके बाद इन दोनों को आपस में मिलाना है। देखें इस तरह आपने मिलाना है। फिर आपने इसके बाद इसको इस तरह मोड़ना है, यानी फोल्ड कर लें। फिर आप इस साइड को इस तरह फोल्ड कर लें। फिर आपने इसके बाद कॉर्नर से आपने एक ट्रायंगल बनाना है दोनों साइड पे। दोनों साइड पे आपने एक ट्रायंगल बनाना है। फिर आपने इसके बाद इनको खोल कर आपने इनको बैक साइड पे ले जाएं। फिर बैक साइड के बाद आपने इस कॉर्नर को, जो बीच में आपको क्रीज दिख रही है, आपने सेंटर में आपने इसको इस तरह एक क्रीज बनानी है। फिर आपने दूसरी साइड को भी इस तरह आपने करना है। फिर आपने तीसरी साइड को भी। इसके बाद आप इसको दोबारा ट्रायंगल जैसी शेप में, वही शेप में लिया है। फिर आपने इसके बाद इसको यूँ मोड़ना है। फिर आपने इसको इस साइड पे मोड़ना है। फिर आपने इसके बाद इसके ट्रायंगल है, आपने इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। फिर आपने इसके बाद इन दोनों को इस तरह कर कर ज्वाइन करें। जी इस तरह आपने ये फोल्ड है। फिर आपने जो आपके ये जो इसके अंदर खाने बने हुए हैं वो आपको इस तरह बनाना है। जी बॉक्स जो बने हुए हैं, आपने इसको शीट को पहले आपने हाफ करना है। फिर आपने उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह, अशीर भाई ने, आप देख रहे हैं कि अशीर भाई हमारे पूरा फॉर्मेट जो है, इसका फॉर्मेट जो है बता रहे हैं। जी कैंची के इस्तेमाल के वक्त एहतियात करना ज़रूरी है और जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जी शील भाई। जी तो आपने इस तरह आपने स्क्वायर पीस आपने काटना है। फिर इसके बाद आपने इसको दोनों साइड का आपस में आपने फोल्ड करना है। फिर आपने जो बॉक्स के अंदर की जो ड्रॉ है ये वो बनाना सिखा रहे हैं। फिर आपने इसको इसी तरह दूसरी साइड से फोल्ड करना है। ये देखें,
4 स्क्वायर आपने 4 स्क्वायर आ गए। फिर आपने इसके बाद इसको सेंटर पॉइंट से आपने फोल्ड करना है, चारों कॉर्नर को आपने इस साइड पे फोल्ड करना है। फिर आपने इसके बाद इसको सेंटर पॉइंट तक फोल्ड करना है। फिर आपने दूसरी साइड को भी सेंटर पॉइंट तक फोल्ड करना है। ये देखें, ये इस तरह फोल्ड हो जाए। फिर आपने इनको इस तरह खोलना है। फिर आपने इस साइड को इस तरह फोल्ड करना है। फिर आपने दूसरी साइड को भी इस तरह फोल्ड करना है। फिर आपने इसके बाद दोनों को आपस में इस तरह ज्वाइन कर देना। जी ज्वाइंट यहाँ फोल्ड कर लें। फिर आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह फोल्ड करना है। तो ये आपका इस तरह के आपका बॉक्स बन जाएगा। जी माशाल्लाह। तो हमारे अशील भाई ने आपको पूरा फॉर्मेट बताया, इसका थोड़ा लंबा फॉर्मेट था लेकिन बहुत ही अच्छा बना। अशील भाई अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत देता फरमाए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? किड्स मदनी चैनल। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल न्यू सेगमेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी दावत दूसरों को भी आम करते रहिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।